Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDI practice series, right? So let's proceed with the session, and we have a logical DI with us, right? This kind of set actually came in CAT 2016, right? So this is a memory based set. चलो start करते हैं. And as always, the first thing you should do is pause this video right here itself, try this at yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start understanding this. Let's first read this. So, five persons, namely Sachin, Rahul, Saurav, Yuvi, and Virat, competed in an adventure sport event comprising of five tasks: rafting, swimming, running, point ball, and high jump. Each person had to perform each of the five tasks in the event. To complete each of the five tasks, a person is given 60 minutes. There were two parameters: position secure and time taken to complete the task, right? So, दो पैरामीटर है जिस पे आपको पॉइंट्स मिलने वाले. द फर्स्ट इज पोजीशन सिक्योर एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द task is the second one, right? Based on which points are awarded. For each task, the points awarded for securing first, second, third, fourth, and fifth position were 50, 40, 30, 20, and 10 respectively. So, based on the position, ये points है 50 से लेकर 10 तक. Obviously, 50 would be gotten by the person who secured the first rank, right? And so on till the like fifth rank, and he or she will get 10. इन नो टास्क टू और मोर पर्सन सिक्योर द सेम पोजीशन. तो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर टास्क में पांच लोगों को पांच डिफरेंट आपका रैंक मिलने वाली है, पोजीशंस मिलने वाली है, तो पांच पॉइंट्स आपको हमेशा दिखेंगे, ठीक है, विद इन अ इवेंट. The person who completed given task in the least time secured the first position, very obvious, and the person who completed the same task in maximum time secured the fifth position. Clarification statements. If a person completed a task in 60 minus n minutes, for example, let's say someone completed a task in 40 minutes, right? So 60 minus n, that would be equal to 40. So n कितना आ जाएगा? 20 आएगा. Where n is a whole number, he was awarded n additional points apart from the points he was awarded for securing a particular position. तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं इसको, बहुत मैथमेटिकली लिखा गया है, बट सिंपल वर्ड्स में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल सचिन को स्विमिंग में 52 मिनट्स लगा है ना, सो उसको 60 मिनट्स मिले थे, 52 मिनट उसने यूज करा, यूटिलाइज करा, सो 8 मिनट उसने सेव करा है ना, वो 8 मिनट उसको एडिशनल पॉइंट्स की तरह मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन वाले पॉइंट्स की जगह, राइट? वो तो उसको पोजीशन वाला मिलना ही है बेस्ड ऑन हिज रैंक, राइट? ऑब्वियसली इन स्विमिंग, बट उसके 8 मिनट सेव हुए तो उसको वो 8 एड्स पॉइंट्स भी कन्वर्ट होके उसके टोटल पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे, right? So that is the meaning of this particular statement. After completion of the five tasks, the person who got the maximum number of points, that is the sum of the points scored in the five tasks, was declared the winner of the event. So जिसका maximum points होगा वो winner हो जाएगा. The time taken by the persons who finished the task is given in the table provided below with some numbers missing, and we have then some additional points based on which we have to figure out these questions. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डूइंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज, अभी इसको पहले एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, है ना. यूवी हु गॉट अ टोटल ऑफ 286 पॉइंट्स इन द फाइव टास्क पुट टुगेदर वन द इवेंट. तो यूवी का, दिस पर्सन, यूवी का टोटल कितना पॉइंट्स है? 286. वह वन द इवेंट, राइट? इसका था हाईएस्ट पॉइंट्स होगा पर्टिकुलर पर्सन, इन पांचों में से हाईएस्ट 286 है. राहुल हु गॉट 178 पॉइंट्स, तो राहुल का भी पॉइंट्स पता है, दिस इज 178, came last in the event, fine. In rafting, so it is talking about a particular event now. In rafting, the sum of the points awarded to the five persons was 254. Now, this is a good point to begin with. I'll explain this in a moment. In running, the sum of the points awarded to the five persons was 193. So, इसमें total points कितना आया? 193. The sum of the total points across the five टास्क पुट टुगेदर बाय द फाइव पर्सन वॉज 1126. सो ये टोटल आपका पॉइंट्स का एडिशन है. अब चाहे आप उसको पर्सन वाइज पांचों पर्सन का ऐड कर दो या इवेंट वाइज पांचों इवेंट का टोटल पॉइंट्स ऐड करो, अल्टीमेटली वो सेम आएगा, दैट इज 1126. नाउ सबसे पहला काम तो मैं इस पर्टिकुलर सेट में क्या करना चाहूंगा, बिफोर आई एक्चुअली इवन बिगिन टू इंटरप्रेट दिस 254 एंड 196, सबसे पहला टास्क का ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स वाला पार्ट हम लिख लेते हैं वेर एवर पॉसिबल. तो जैसे राफ्टिंग में सचिन को 30 मिनट्स लगे ना, 60 मिनट्स लगा था, मिला था, तो उसने 30 मिनट सेव किया, 60 माइनस 30, सो उसका एडिशनल पॉइंट्स कितना आ जाएगा? 30. सो इन दिस वे जहां जहां आपका टाइम टेकन है, 60 में से वो नंबर माइनस करो और आपको क्या मिल जाएगा? एक्चुअल में टाइम टेकन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. तो सबसे पहले माइनस करें, तो 60 माइनस 45, दिस वुड बी अ 15. 60 minus 28, this would be 32. 60 minus 52, this would be 8. 60 minus 52, this would be 8 again.
right? 60 minus 45, this would be 1560. One second, I'll write this clearly. This is 8, this is 15, right? This is 15, then 60 minus 35, this is 25. Then 60 minus 31, this is 29. 60 minus 58, that is 2. 60 minus 57, that is 3. 60 minus 42, that is 18. 60 minus 48, that is 12. 60 minus 56, that is 4. 60 minus 39, this would be 21. 60 minus 42, this would be 18. 60 minus 57, this would be a 3. Then 60 minus 46, this would be a 14. 60 minus 58, this would be a 2. 60 minus 52, this would be a 8. 60 minus 33, this would be a 27. So ये हमने एडिशनल पॉइंट्स लिख लिए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. जैसे राफ्टिंग और रनिंग दोनों कॉलम्स में हम फोकस करेंगे. क्या है राफ्टिंग में अपने को पता है कि 5 लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, तो पांचों को इन सम ऑर्डर 50 40 30 20 एंड 10 तो मिलेगा ही बेस्ड ऑन द पोजीशन पॉइंट्स. किसको क्या मिला वो अभी हेडेक छोड़ देते हैं, बट राफ्टिंग में 5 लोगों को 10 से लेके 50 तक पॉइंट्स तो मिलने ही वाला है. सो दिस 254 is sum of the position points as well as the extra points. So 10 और 10 20 30 40 50 का एडिशन कितना हो जाएगा 150, राइट? 10 20 30 40 एंड 50 उनका सम कितना बन जाएगा 150 प्लस एडिशनल पॉइंट्स ये ऐड करके कितना बन जाना चाहिए 254 व्हेन इट कम्स टू राफ्टिंग. सो अगर मैं ये एडिशनल पॉइंट्स देखूं तो कितना आ जाएगा 254 माइनस 150, सो दैट हैज टू बी 104. नाउ आउट ऑफ दिस 104 हमें कुछ वैल्यूज तो पता ही है. कुछ वैल्यूज क्या, आउट ऑफ 5 वैल्यूज हमें 4 वैल्यूज पता है. सो हमारा रिमेनिंग वैल्यू एक्चुअली में निकल जाएगा. सो कितना आ जाएगा 30 45 इज 30 एंड 15 इज 45. 45 एंड 40, 45 एंड 40 इज 85. 104 माइनस ऑफ 85, सो दिस वुड गिव मी अ 19. सो यहाँ कितना टाइम लगेगा, इसको 19 लगेगा. बिकॉज इसको 19 लगा तो इसको, सॉरी 19 इसका टाइम सेव हुआ, तो एक्चुअली में इसको टाइम लगा कितना होगा 41 मिनट्स. एंड बिकॉज इसको 41 मिनट्स लगे हैं, तो मैं अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या और काम कर सकता हूँ, मैं इनको जो पोजीशन वैल्यूज मिली है वो भी लिख सकता हूँ. तो जिसका सबसे कम टाइम है उसको हाईएस्ट पोजीशन मिलेगी, राइट? ये वाले से, राइट? सो सबसे कम टाइम किसका हो गया 28. सो इसका कितना आ जाएगा 50. 28 के बाद 30, 40 पॉइंट सेकेंड पोजीशन. देन 30 के बाद हमारा 41, 45 एंड 52 इन दैट ऑर्डर, राइट? सो 30 फिर 20 और लास्ट में इसको कितना मिलेगा 10, राइट? सो वी हैव कंप्लीटेड राफ्टिंग. सिमिलर लॉजिक हम लगा सकते हैं किस पे, रनिंग पे. बिकॉज रनिंग में भी नोटिस करो तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स गिवन है 193. So 193 क्या होगा again? This would be what 150 because in some order we'll have 10 20 30 40 50 here. किसको क्या मिला अभी नहीं देख रहे. 150 तो आएगा ही आएगा, प्लस एडिशनल पॉइंट्स आएगा. So 193 माइनस ऑफ 153, सॉरी 150, दिस वुड बी व्हाट 43. अब 43 हमारा एडिशनल पॉइंट्स है, तो इन पांचों का एडिशनल पॉइंट्स ऐड अप करके 43 आना चाहिए. इसमें ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 18 एंड 20 इज 30, 30 एंड 5 35. तो 43 एंड 35 वुड गिव मी अ 8. बिकॉज यहाँ 8 आया तो उसको टाइम भी कितना लगा होगा, दिस वुड बी व्हाट 52. तभी 60 माइनस 52 से यहाँ क्या आ जाएगा 8. एंड नाउ अगेन बेस्ड ऑन दिस, जैसा कि हमने क्या पे करा था राफ्टिंग के केस में किया था, यहाँ पे भी वही सेम काम कर लेते हैं. रनिंग में भी हम पोजीशन वैल्यूज तो एटलीस्ट डिफाइन कर ही सकते हैं. सो सबसे कम टाइम किसको लगा 42 वाले को, राइट? 42 वाले को कितना टाइम, सबसे पोजीशन पॉइंट्स कितना मिल जाएगा इसको, हाईएस्ट पॉइंट दैट इज 50 मिल जाएगा. 42 के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका 48. सो 48 के करस्पॉन्डिंग उसको पॉइंट्स कितना मिलेगा सेकंड पोजीशन का 40 पॉइंट्स. देन 48 के बाद आपका 52 57 एंड 58, सो 30 पॉइंट्स. देन 20 पॉइंट्स एंड फाइनली इसको कितना पॉइंट्स 10 पॉइंट्स, राइट? सो फार सो गुड. ये हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर लिया. नाउ नेक्स्ट अब हमारा टारगेट क्या होने वाला है, विल लुक एट दीज टू नंबर 178 एंड 286. अब ये दोनों नंबर के करस्पॉन्डिंग चीजें फिगर आउट करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जैसे ये 178 आपका क्या होगा, राहुल का इन 5 इवेंट्स में जो पोजीशन वैल्यू होगी प्लस जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनका टोटल एडिशन का 178 है. नाउ सबसे पहली चीज नोटिस करते हैं, ये जो पोजीशन वैल्यू है आपकी, राइट? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, ये तो फिक्स है, ये हमें नहीं पता. यहाँ पे भी हमें नहीं पता,
बट वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड फाइंड द पॉसिबिलिटीज हियर। कैसे? सोच के देखो, पॉइंट बॉल में इसका 56 टाइम लगा है। 56 हमारा ऑलरेडी 39 एंड 42 से ज्यादा है, और 57 से क्या है, कम है। तो सोच के देखोगे तो 56 टाइम के साथ आई कैन नॉट बी एट द फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन, बिकॉज उससे ऊपर पोजीशन वाइज ऑलरेडी 39 एंड 42 टाइम वाले होंगे ही होंगे। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पे कभी भी नहीं आ सकता। ऑलरेडी 56 से ज्यादा टाइम 57 वाले को लगा है, तो ये वाला कभी लास्ट भी नहीं हो सकता, बिकॉज उससे खराब परफॉर्मेंस इस वाले की है। सो फिफ्थ भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हो सकता डेफिनेटली, लास्ट नहीं हो सकता डेफिनेटली। तो दो ऑप्शन बच जाएंगे, या तो वो थर्ड पोजीशन पे होगा या तो फोर्थ पोजीशन पे। थर्ड एंड फोर्थ पे होने की वजह से उसको पॉइंट्स या तो 30 मिलेंगे या तो 20 मिलेंगे। यही सेम लॉजिक हम इस 58 के करस्पॉन्डिंग भी चेक करें, तो 58 ऑलरेडी हमारे इन चार गिवन नंबर में से सबसे खराब है। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो नहीं हो सकता, राइट? ये फोर्थ पे हो सकता है या फिर फिफ्थ पे हो सकता है। तो या तो इसको पॉइंट्स 20 मिलेगा या तो इसको पॉइंट्स कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। नाउ अब ये 178 कैसे बन रहा होगा? इन चार मतलब ये पांच जो पोजीशन आपकी वैल्यूज आएंगी, राइट, उनका सम और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनका सम बन रहा होगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं 178 में से ये सब चीज सब्ट्रैक्ट करता हूं ना। 178 में से पोजीशन वैल्यू हमारा क्या है, 20 20। और यहां नोटिस करोगे तो या तो 30 20 50 बनेगा, या तो 30 10 40 बनेगा, वो भी 20 20 40 बनेगा, या फिर 20 10 30 बनेगा। सो इन दोनों का जो एडिशन है वो 50 40 एंड 30 बन सकता है ना? 50 40 एंड 30। सो 20 20 दैट इज 40, आप पहले साइड में लिख लेते हैं, 40 प्लस, या तो ये दोनों मिला के 50 होंगे, या तो ये 40 होगा, या तो 30 होगा। तो ओवरऑल ये पूरा पोजीशन वाले आपका ओवरऑल एडअप करके या तो ये 90 बनेगा, या तो ये 80 बनेगा, या तो ये क्या बनेगा, 70 बनेगा। सो 178 में से पोजीशन वैल्यू जो चार गिवन है उनकी वैल्यू या तो 90 सब्ट्रैक्ट होगी, 80 होगी, या तो 70 सब्ट्रैक्ट होगी। इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है 15 3 4 एंड 2, वो तो यूनिक है। 15 3 18, 18 और 6 24, ये सब्ट्रैक्ट होगा। इसका डिफरेंस अगर निकालो तो कितना आ जाएगा? 178 में से पहले तो 24 हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 154। 154 में से 90 अगर सब ट्रैक करोगे तो कितना बनेगा, 64। 80 सब ट्रैक करोगे तो कितना बचेगा, 74। 70 सब ट्रैक करोगे तो कितना बचेगा, 84। तो तीन पॉसिबल वैल्यूज है। अब ये तीन पॉसिबल वैल्यूज किस चीज की हैं? स्विमिंग में आपका जो पॉइंट्स का ओवरऑल एडिशन आएगा। कौन से पॉइंट्स का एडिशन? पोजीशन वैल्यू की वजह से और जो एक्स्ट्रा आपका पॉइंट्स है उन दोनों का एडिशन कितना आने वाला है, या तो 64, या तो 74, या तो आपका 84। राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ये तुम्हें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, राइट? तो बेसिक हिट एंड ट्रायल। सो अब 64 74 84, नेक्स्ट पॉइंट हमें इन नंबर्स को देख के ये समझ में आता है कि यार ये देखो, ये जो नंबर है तीनों में से कोई एक आएगा, वो यहाँ का पोजीशन पॉइंट प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा। पोजीशन पॉइंट हमेशा 10 का मल्टीपल होता है ना, 10 20 30 40 50। तो ये 64 नंबर एंडिंग इन 4, 74 नंबर एंडिंग इन 4, या 84 नंबर एंडिंग इन 4 कैसे बन रहा होगा? पोजीशन वैल्यू तो आपका 10 का मल्टीपल होगा, उसमें से यूनिट डिजिट 0 आएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, दैट हैज टू बी अ नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तुम्हारा 4 आ जाए। आई बात समझ में? उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाना चाहिए, आपका 4 आ जाना चाहिए। तो अब तुम्हें एक्चुअली में एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो तुमने अगर यहाँ पे सपोज एक्स्ट्रा टाइम आपका बचा 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 56 टाइम लगा होगा। लेकिन 56 टाइम लगने की वजह से इन सबसे खराब टाइम होगा, तो उसको सिर्फ 10 पॉइंट ही मिलेंगे, 14 आपका पॉइंट बन पाएगा। बट यहाँ तो 14 है नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, 4 नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्या वो नंबर 14 हो सकता है? बिकॉज उसका भी यूनिट डिजिट कितना है, 4, वो ही फिक्स रहेगा, 4 14 24 34, ऐसे चेक करेंगे। 14 अगर हुआ तो उसका टाइम कितना सेव होगा, व्हाट, 46। 46 अगर नोटिस करो तो 52 से बेटर है, लेकिन इन तीनों से खराब है, तो वो स्टिल सेकंड पोजीशन पे पहुंचेगा। सेकंड पोजीशन पे पहुंचने का मतलब उसको कितना पॉइंट मिलेगा, 20, बट स्टिल इसका टोटल पॉइंट्स कितना आएगा, 34। 34 तो नहीं पॉसिबल है, इन तीनों में से कुछ आना चाहिए। देन वी टू क्या, टेक ए लुक एट दिस 24। 24 अगर इसका टाइम बचेगा तो टाइम कितना लगेगा, 36। नाउ 36 हमारा 52 45 से बेटर है, लेकिन 35 और 31 से खराब है, तो मिडिल में होगा। मिडिल में मतलब थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन का मतलब इसको 30 पॉइंट्स मिलेगा, स्टिल द एडिशन बिकम्स 54 ओनली।
ये तो नंबर नहीं पहुंचा। देन 34 हो सकता है क्या, अगर टाइम इसका 34 बचा तो उसको टाइम लगेगा 26, एंड नाउ दिस 26 एक्चुअली द बेस्ट पॉसिबल टाइम, सबसे लीस्ट है, तो उसको तो फर्स्ट रैंक मिल जाएगी, एंड फर्स्ट रैंक की वजह से पॉइंट्स कितना मिलेगा 50, एंड नाउ दिस 50 एंड 34 एड अप टू गिव अ 84। तो ये 84 आपका बनते हुए दिखेगा। अब तुम सोचोगे ये क्या, ये बन नहीं सकते, नहीं बनेंगे, बिकॉज अब 34 के बाद अगर तुम इसका 44 या 54 या यही दोनों पॉसिबिलिटी, ये दोनों करोगे तो उसका और कम टाइम लगा होगा, तो स्टिल फर्स्ट पे ही रहेगा, तो हमेशा 50-50 ही ऐड होगा, तो ये तो ऊपर निकल जाएंगे ना 94 या फिर 104, इतना ऊपर नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स वी कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे इसका टाइम जो सेव हुआ होगा वो कितना लगा होगा 34, और इसको लगा कितना होगा 60 माइनस 34 से 26, एंड विद दैट ही वुड हैव बीन एट द व्हाट फर्स्ट पोजीशन। तो अब हम यहां से ये भी चीज फिक्स कर सकते हैं बाय द वे, राइट, कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, बिकॉज हम यहां से क्या बना रहे हैं, ये 64, राइट, हम यहां से क्या कर रहे हैं, अपना 84 बना है, सॉरी 84 बना है। अब 84 कब बना है, जब यहां पे हमने क्या करा 70 सब्ट्रैक्ट किया है ना, जब यहां पे हमने क्या करा, ये अपने 70 सब्ट्रैक्ट किया, तो 178 माइनस 70 माइनस 24 हुआ, ठीक है, लेट्स चेक 70 एंड 24 94, दैट इज 84 बचा, और ये 84 हमारा यहाँ पे बना था। तो 70 हमारा कब बना था, 40 और 30 से, तो इसका मतलब यहाँ 20 और 10 रह जाएंगे, राइट, यहाँ पे 20 और 10 रह जाएंगे, तो यहाँ से 30 हटा दो, इसका फिर फिक्स है 20 पॉइंट्स मिला होगा इसको, और यहाँ पे आपका कितना पॉइंट्स मिला होगा इसको, 10 पॉइंट्स मिला होगा, राइट। सो 20 एंड 10 ये नंबर बन जाएगा। एंड नाउ कुछ और भी चीजें हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर कॉलम में किसको कितना पॉइंट्स मिला होगा वो भी हम यूनिकली पूरा लिख सकते हैं। तो 26 ऑब्वियसली लीस्ट टाइम है तो उसको 50 पॉइंट्स मिला होगा, 26 के बाद 31 तो 40 पॉइंट्स, फिर 35 30 पॉइंट्स, फिर 45 20 पॉइंट्स, और उसको कितना 10 पॉइंट्स। सो दीज 3 कॉलम्स आर नाउ कंप्लीट। स्विमिंग का एक्चुअली अगर हम टोटल भी देखें तो स्विमिंग में टोटल भाई 150 तो वो हो जाएगा, एंड एडिशनल पॉइंट्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो काउंट बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 150, 34 एंड 8 इज 42, 42 एंड 40, 42 एंड 40, दिस इज 82, 82 एंड 29, 80 and 20 is 1000, sorry 100, and 2 and 9 is 2 and 9 is 11, right? 2 and 9 is 11, so ये हमारा कितना हो जाएगा 100 एंड, so this has to be, sorry not 111, this is 150, right, 150, 150, 42, 42 and 40, 42 and 40, 42 and 40, this is 82, 82 and 29, so that is 111, 111 plus 150, 150 plus 111, that is 261, right, so this is 261. नाउ अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट अगर नोटिस करो, सो अब आपका यूवी के लिए हम सेम प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं ना, यूवी के लिए वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर, सो लेट्स डू दिस। नाउ यूवी के लिए नोटिस करो, तो अब यहां पे आपको क्या क्या पता है, देन अगेन यहाँ पे आपका दो आपके नंबर नहीं पता, यहाँ तो बिल्कुल नहीं पता, बट यहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो पता है। सो 286 तुम्हें बनाना है ना, सो 50 30 40 ये क्लियर कट है, इनके 32 25 एंड 12 भी क्लियर कट है। नाउ इसका क्या पॉइंट हो सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी सोचो, तो 42 पॉइंट्स है, 42 हमारा 57 से बेटर है, 56 से बेटर है, राइट, 39 से लेकिन खराब है, तो डेफिनेटली ये 42 के साथ फर्स्ट पे नहीं हो सकता, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पे नहीं हो सकता डेफिनेटली। सो या तो ये सेकंड पे होगा या तो ये थर्ड पे होगा, सेकंड एंड थर्ड पे होने की वजह से या तो इसको 40 पॉइंट्स मिलेंगे या तो इसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे 30 पॉइंट्स मिलेंगे, और बाकी ये बचा नंबर। तो अब सेम काम कर लेते हैं, 286 में से पहले तो हम ये नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 50 30 40, दिस वुड बी व्हाट 80 40, 80 एंड 40 120, अब 120 प्लस 40 या तो 160 सब्ट्रैक्ट होगा, या तो हमारा 120 प्लस 30 150 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये 32 25 12 एंड 18, 12 एंड 18 इज 30, 30 के साथ आपका 32 एंड 25 इज 57,
57 एंड 30, 57 एंड 30 इज 87, इतना तो आपका सब्ट्रैक्ट होगा। आप 286 माइनस 87 कर लो और माइनस 160 माइनस 150, तो क्या जाएगा 286 माइनस, अगर मान लो 160 करते हैं, पहले ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 286 माइनस अगर 160 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 26 126, या फिर अगर 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 136 बचेगा ऑब्वियसली। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 87। तो अगर 126 में से 87 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचेगा हमारे पास, 13, दैट इज 39 बचेगा, है ना, 26 एंड 13। और अगर 136 सब्ट्रैक्ट करा, मतलब 136 में से 87 सब्ट्रैक्ट करा तो 10 ज्यादा बच जाएगा, दैट इज क्या बच जाएगा आपका 49। अगेन वही सेम पॉइंट, पॉइंट बॉल में फिर आपका नोटिस करो, सॉरी यहाँ पे हाई जंप है, हाई जंप के लिए निकालेंगे ये वाला नंबर। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसके लिए हम फिर से बोल सकते हैं उसको क्या नंबर मिलने वाला है आपका, जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है आपका, 9 आने वाला है, ठीक है। तो या तो ये 9 होगा या 19 होगा या 29 होगा या 39 होगा, 49 भी देख सकते हैं, चेक करना पड़ेगा 49 आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली 59 तो नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज इसका पॉइंट जो ओवरऑल आना चाहिए पोजीशन और उसका एक्स्ट्रा टाइम की वजह से वो या तो 39 आएगा या तो तुम्हारा 49 आएगा। करके चेक करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इसका 9 टाइम सेव हुआ तो उसको टाइम कितना लगा होगा, 51। नाउ विद रिस्पेक्ट टू 51 अगर हम नोटिस करें, 51 इज बेटर देन दीज टू, 58 एंड 52 एंड वर्स देन 46 एंड 33। सो 51 के 51 पॉइंट्स के साथ ही वुड बी एट द थर्ड पोजीशन, उसको कितना मिलेगा, 30 पॉइंट्स मिलेगा। 30 एंड 9 इज ऑलरेडी 39 और वो नंबर हमें यहाँ पे बनते हुए भी दिख रहा है। अब इसके बाद क्या पॉसिबल भी होगा, अगर मान लो यहाँ 19 होता तो 19 का मतलब 41 होता, तो 41 का मतलब प्रॉब्लम ये है कि 41 फिर हमारा 46 से भी बेटर है, 58 से भी बेटर है, 52 से भी बेटर है 41 वाला, तो वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा बिकॉज 33 से तो खराब है। सेकंड पोजीशन का मतलब एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 40, तो इसका पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 59। लेकिन अब यहाँ पे 49 ही हमारा मैक्सिमम हो सकता था इसका दोनों का एडिशन करके, तो अब इसके ऊपर जाने का पॉइंट ही नहीं बनता बिकॉज उसका ये वाला पॉइंट बढ़ना चालू हो जाएगा। सो 49 के ऊपर वैसे भी नहीं बनना है, सो ऑल दीज केसेस आर गॉन, हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन ही फिट होगा। तो यहाँ इसका टाइम जो सेव हुआ होगा वो कितना होगा, 9, टाइम लगा कितना होगा इसका, 51, राइट। सो 39 से बन रहा है, राइट, 39, तो इसका मतलब ये 126 वाला यूज हुआ है, 126 का मतलब यहाँ पे 160 यूज हुआ है, 160 का मतलब यहाँ पे 40 यूज हुआ होगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो डन, तो यहाँ पे 40 टाइम इसको एग्जैक्टली लगेगा ना। अब आप क्या काम कर सकते हो इस वाले कॉलम में, बिकॉज आपको अब सबका टाइम बताए तो आप सबका पॉइंट्स भी चाहो तो लिख सकते हो, राइट। जैसे 58 पे 10 है, फिर 52 उससे खराब तो 20 पॉइंट्स, फिर 51, फिर उसके बाद नेक्स्ट वही होगा तो 30 पॉइंट्स, फिर 46 को 40 पॉइंट्स एंड 33 पे कितना, 50 पॉइंट्स, राइट। एंड नाउ नाउ एक्चुअली यूजिंग दिस हम इसका टोटल हाई जंप का टोटल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, है ना। हाई जंप का टोटल पॉइंट्स वही वर्ष फिर से 150 तो होगा ही होगा, प्लस 14 2 एंड 8 8 2 10 24 24 and what 36, 24 and 36 would be 60, तो 60 and 150 that is 210 इसका आ जाएगा। नाउ बचा आपका ये वाला, इसी में सिर्फ आपको फिगर आउट करना बचा है, और यहां कैसे फिगर आउट कर ले आएंगे, थ्रू दीज टोटल पॉइंट्स। अब टोटल पॉइंट कैसे निकलेगा, 1126 वाज द टोटल ओवरऑल पॉइंट, है ना, 1126, 1126 में से ये चार नंबर आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट पॉइंट बॉल का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट। पॉइंट बॉल का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा एंड दैट वुड बी 208, सो दिस वुड बी 208। अब इस 208 में नोटिस करो तो 10 से लेके 50 तक तो होगा ही इन सम ऑर्डर, तो 208 यहां कर लो, 208 माइनस 150 तो होगा ही होगा, और फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके उनको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हारा यहां वाले का एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सो ये कितना हो जाएगा, 4 81 एंड 4 इज 25, 25 एंड 21, 25 एंड 21, सो दिस इज 46, तो 46 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब 196 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 196 का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8 प्लस 4 दैट इज 12, सो दिस हैज टू बी 12 एंड बिकॉज ये 12 है तो तुम्हारा यहाँ पे टाइम लगा कितना होगा, 48। तो
तो अब हम यहाँ पे इनके पॉइंट्स भी चाहो तो आप दे सकते हो। 56 पे 20 पॉइंट्स है, 56 से खराब ये है तो इसका 10 रहा होगा। फिर 42 पे 40 है, 42 से खराब ये है ना, सो इसको कितना मिला होगा आपका, 42 से खराब है तो 57, 56, फिर 48 आया होगा, राइट। सो इसको कितना पॉइंट मिला होगा, 30 पॉइंट्स मिला होगा। फिर 42 पे 40 मिल गया और उससे बेटर टाइम आपका 39 है तो उसको कितना पॉइंट मिला होगा, 50 पॉइंट्स मिला होगा। सो दैट इज द कंप्लीट सेट, a very calculative set. It does involve a bit of hit and trial also, not a bit, kind of a lot of hit and trial also. But yes, this is a good set. क्या 2016 में था, definitely a difficult one, right? So I hope you understood this. So first problem, how much time did Rahul take to complete swimming? Rahul for swimming, he took 26 minutes. Then how much time did Sachin take to complete point ball? Sachin point ball, so that is 48 minutes. Then how much time did UV take to complete high jump? UV for high jump, so that is 51 minutes. And what was the total number of points scored by Sachin in the 5 tasks put together? Sachin in the 5 tasks put together. तो ऐड करना पड़ेगा 40, 10, 10, 60, 60 and 40, 60, 40 is 100, 130 तो ये हो जाएगा। प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे सचिन को, 38 एंड 2, 8 and 2 is 10, 10 and 30 is 40, 40 and 26, 40 and 26 would be 66. So add up कर देंगे कितना आ जाएगा 196. So that is the answer to the final problem. Right, so I hope you understood this set thoroughly. Right, if you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.